Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Alright, let's do easy. As you all know that after a very long time, I'm taking class on YouTube today. So today I will discuss an important topic, and this topic is financial statements. As we all know that this topic is very important for class 11th students, and this topic has major portion to introduce in class 11. So first of all, a question arises in our minds, and it is important to ask this question: what is it? Why should we study it? Is it necessary? If so, for whom? So let's start this chapter and we get the answer. Okay. So financial statements, as we all know that this is the chapter 21 according to D.K. Goel. So I will introduce this chapter, and here we discuss definition of financial statements, main types of financial statements. What are the main types of financial statements? Like trading account, profit and loss account, balance sheet. Okay. And first of all, definition of financial statement. What is the definition of financial statement? Financial statements are formal records. As we all know that financial statements are formal record to introduce the financial position of a business. We can easily say that financial statements are formal records that show financial performance and financial position of a business over a specific period. In other words, at the end of the year, to introduce the financial position of a business in a specific time period is known as financial statements. We all know it very well, but here we discuss some important meanings, definition of financial statements. First one is, financial statements are statements prepared at the end of the accounting period to show the financial performance and financial position of a business. Fine. First two definition है बहुत ही important, and look at this. Financial statements are statements prepared at the end of the accounting period to show the financial performance and financial position of a business. जैसा कि मैंने पहले ही आपको जो इंफॉर्मेशन दी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ओरल इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताया था कि these are formal records to introduce the financial position of a business over a specific period of time. So this is the definition of financial statements. The second definition is, financial statements are formal records that summarize the financial performance and financial position of a business for a particular period. So these are two definitions of financial statements. So why I am telling you at the beginning of the class, why is it necessary? If so, for whom? क्यों जरूरी है? अगर जरूरी है तो किसके लिए जरूरी है? तो these points are very important. Financial statements have, in other words, with the help of financial statements, owners, managers, banks,
and stakeholder. Understand how the business is doing financially. Is it clear? I repeat my word. By the help of financial statements, owners, managers, stakeholders, banks understand how the business doing well financially. So these points are very important. The first definition is so easy and the second one is also. So now come to the point, main types of financial statements. There are three types of financial statements: trading and profit and loss account, balance sheet, and the third is cash flow statement. In class 11, we study only two types: trading and profit and loss account and बैलेंस शीट. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 12 में पढ़ेंगे, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही बस उसके बारे में जानेंगे, बट इसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे. ओके, डेफिनेशन आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं. और जैसे कि मैंने अगर नहीं बताया हो तो मैं फिर से बता दूं, after a very long time I am taking a class on YouTube today. So if you are a student of class 11 and if you want to succeed in your life, in your exam, please join this class. If you join this class, you can improve your skills in my own way. Okay? Please join this class if you are the students of class 11, commerce students, accountancy students. Okay. Trading and profit and loss account, balance sheet, cash flow statement. There are three types of financial statement. Here we study, we discuss trading and profit and loss account, balance sheet. Cash flow statement is the part of class 12. जब हम क्लास 12 में जाएंगे, अकाउंटेंसी में जो लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं वो कैश फ्लो ही होता है जनरली. ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो क्लास 12 में पढ़ेंगे. अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सेकेंड बैलेंस शीट का. डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत ही शानदार है. ठीक है. और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हेल्प करेंगे आपको फॉर्मेट को याद करने में, फॉर्मेट को समझने में, क्वेश्चन को लगाने में. तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि इसमें साफ साफ बोला है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. We know it very well. अकाउंटिंग पीरियड जो हमारी होती है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होती है फाइनेंशियल ईयर. ओके, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होगा तभी ये बनाई जाती है, ऐसे नहीं बनाएंगे. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स. ये फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं. फॉर्मल रिकॉर्ड्स का मतलब है इन फ्यूचर अगर कोई भी ऑडिट होती है, कोई भी ऑडिटर्स आता है, बाहरी हस्तक्षेप होता है, रिकॉर्ड चेक करने के लिए आता है, तो ये फॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं आपके, उन्हें आप दिखा सकते हैं और ये वेरीफाइड हो जाते हैं. ठीक है. दैट समराइज, इन्हें समराइज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को संभाल के रखा जाता है. ठीक है. द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होने के कारण. ठीक है. एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का जो वित्तीय स्थिति है उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं.
ठीक है, फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, वही बात यहाँ पर भी दिख लिखा है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यहाँ पर लिखा है फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। जो पार्टिकुलर पीरियड है वो हमारा, ये जो पार्टिकुलर पीरियड है इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है? 1 ईयर। जनरली जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, या इसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। और जो कि होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, इज इट क्लियर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। कभी कभी आपने सुना होगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कहीं कहीं लिखा रहता है, तो डजंट मैटर, पहले के रिकॉर्ड बुक्स में ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर? ओके, सो नाउ आई डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई एम टेलिंग यू दिस डिफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Please note down in your notebooks and understand the concepts. Now, take the screenshot first of all. Okay, now I will discuss first trading account and profit and loss account, then balance sheet. Okay, so financial statement as we all know that there are 3 categories generally in class 11 we can study. First is trading account, and the second is profit and loss account, and the third is balance sheet. In financial statement we study trading account, profit and loss account, and balance sheet. So how can we understand the trading account? How can we understand profit and loss account? And how can we understand balance sheet? The question is very important. Trading account, profit and loss account, and balance sheet. How can we recognize it? How can we recognize this term is related to trading account? How can we understand this term is related to profit and loss account? How can we understand this term is related to balance sheet? So there are some few terms, few concepts which are very important to introduce. कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें महत्व देना है इनको समझने के लिए, और कुछ नहीं। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में बस आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो आप कहेंगे सर जितना भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होता है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, आई रिपीट माय वर्ड, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, उस सारा का सारा एक्सपेंस वो ट्रेडिंग में काउंट किया जाएगा। सर कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट? हम फॉर्मेट के बारे में बात करें, लेकिन अभी हम सिर्फ ओरल ये जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीजें हमें ओरल ही समझ आनी चाहिए?
अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान से देखें तो मैंने बताया कि रिलेटेड टू परचेज, पहली बात। उसके बाद क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आएंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे आपका वेजेस हो गया, कैरियर्स इनवर्ड हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, ऑक्ट्राइड, रॉयल्टी हो गई आपकी, सॉरी रॉयल्टी हो गई, कैरियर्स इनवर्ड हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया। तो these terms are very important. Direct, these terms are related to direct expenses, wages, carriage inwards, octroi, royalty। और क्या क्या चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट इसमें, आपको ओपनिंग स्टॉक देखने को मिलता है, इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक भी देखने को मिलता है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहेंगे, कॉमन सी बात है। दूसरी बात क्या है, इसमें आपको परचेज देखने को मिलता है, रिलेटेड टू परचेज में लिखी हुई है। ओके, अब बात आती है रिलेटेड टू परचेज के बाद क्या सेल्स इसमें आता है, बिल्कुल सेल्स आता है, ठीक है सेल्स आता है, पर सिर्फ सेल्स ही आता है। अगर सेल्स से संबंधित एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। कहानी दिलचस्प है सर, कैसे समझेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। सपोज आपको एक पेन बनाना है, आप इसका जो है रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं। जब तक ये पेन तैयार नहीं हो जाता, लेबल पन्नी चढ़ी हुई, ठीक है पैकेजिंग तक पूरा कंप्लीट हो गया हो, देन वो सेल्स का पार्ट हो जाता है। जब तक ये पेन तैयार हुआ, ठीक है यानी कि ये भी सिंपल सा पेन है, इसमें लेबल लगाएंगे तो सेल्स का पार्ट हो जाएगा। जैसे ही सेल्स का पार्ट हो जाना, इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाना। अभी इस कंपनी से नया नया पेन बन गया है, अभी इसकी नया पैकिंग हुई है, लेकिन पेन बन गया है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं था। ये बाद में जाहिर सी बात है इसकी एडवर्टाइजिंग बाद में हुई होगी, नॉर्मल सा पेन बना होगा, सफेद सफेद रहा होगा, उससे बाद में स्टिकर लगा होगा, कॉमन सी बात है। तो जब तक ये पेन नहीं तैयार हुआ, जो रियल है इसकी एडवर्टाइजिंग में, इसकी पैकेजिंग में जो खर्चा है वो सेल्स का पार्ट होता है, और जितना सेल्स का पार्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन जब तक पेन तैयार हो गया है, ठीक है वो सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा हो, देन वो सेल्स का पार्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले किसका पार्ट रहेगा, ट्रेडिंग का। मतलब अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है और रॉ मटेरियल के लिए आपने जब रॉ मटेरियल मंगाया है तो उसके लिए आपको कैरेज देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है फ्रेट देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, कार्टेज देना पड़ता है। ये जो कार्टेज है, फ्रेट है, कैरेज है, एक कैरियर्स है, तो ये जितना भी पार्ट है वो सब परचेज पर एक्सपेंस हो रहा है। और परचेज पे एक्सपेंस होने का मतलब ये है कि इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस ये होते हैं और ये एक्सपेंस यहाँ पर आएंगे। तो कॉमन सी बात है, डायरेक्ट का अपोजिट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात, जो डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहचानने के क्या तरीके, एक तो तरीका है कि वो डायरेक्ट ना हो,
दूसरा तरीका ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस डिपेंड होते हैं सेल्स पर या आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग। जो प्रोडक्ट होता है आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग व्हाट वी पे whatever we pay या whatever we expend, these are known as the related terms, which are related terms is profit and loss. So these terms are related to profit and loss. So look at this. आपने एक पेन बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आपने पेन बहुत अच्छे से बना लिया है। और अगर आपने पेन बना लिया है तो इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? पैकिंग भी तो करनी है, तो पैकिंग का जितना पोर्शन है एक्सपेंस आया वो प्रॉफिट लॉस में चला गया। प्रॉफिट लॉस में ये जो पैकेजिंग होगी, लेबल, एडवर्टाइजिंग होगी, इनका जो भी है पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कैरियर्स ऑन सेल्स, ठीक है, अगर सेल्स पर कोई भी भाड़ा दिया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। जब तक पेन बन नहीं रहा है, जब तक पेन नहीं बन पाता है, जब तक वो तैयार हो गया है, ठीक है, और वो पैकेजिंग के लिए ना जाए, एडवर्टाइजिंग के लिए ना जाए, ठीक है, तब तक वो ट्रेडिंग का पार्ट है। और जैसे ही पैकेजिंग आ गई, एडवर्टाइजिंग आ गई, जैसी बात है कंप्लीट होने के बाद पहले लेबल होगा, ठीक है, उसके बाद पैकिंग होगी अच्छे से कागज़ में या पन्नी में, जो भी उनकी डिमांड है, तो उसमें पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग के बाद सेल्स पर कैरेज होगा, ठीक है, या कार्टेज। तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लिखते हैं? यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आता है, ठीक है, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट या इनकम। कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो आप इसको आप समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या सीखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड इनकम को पढ़ेंगे, बात एक ही। और डेप्रिसिएशन होता है, अगर कोई लॉस होता है, डेप्रिसिएशन या फिर कोई लॉस होता है, उसे भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट में आपको दो टर्म्स आते हैं। पहला टर्म्स ये है कि बैलेंस शीट में हम लोग डिस्कस करते हैं लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज। सेकेंड टर्म्स है आपके असेट्स। अब लायबिलिटीज क्या होती है, असेट्स क्या होते हैं, इनको भी हम जानेंगे जब हम इनके फॉर्मेट को पढ़ेंगे। अभी मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक पढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को पढ़ेंगे, रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स मिलेगा, ठीक है, या परचेज एंड सेल्स मिलेगा। आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि परचेज एंड सेल्स, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, कंफ्यूज ना रहे ताकि। ओके, परचेज एंड सेल्स रहेगा, उनसे संबंधित कुछ टर्म्स रहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, ऑक्ट्राई, रॉयल्टी जैसे वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, टर्म्स रहेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट होता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बहुत सारे होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे जब फॉर्मेट पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और इनकम जो कि क्रेडिट साइड दिखाई जाती है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन एंड लॉस को भी डिस्कस किया जाएगा। बैलेंस शीट में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज को एंड एसेट्स को। तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, सॉरी, नाउ कम टू द पॉइंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग तीन चीजों को पढ़ते हैं और सबसे पहला ही हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट, द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट and then I will proceed. Okay, now I will discuss the format of trading account. There are some important terms, some rules and regulation,
of this format, please look at this whiteboard carefully and understand the concept of trading accounts. I am telling you, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही कम लोग उस तरह से पढ़ाएंगे। कोशिश करिएगा अच्छे से फोकस करके हम इस चीज को सीखें। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इस पे फोकस करें। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। आप यहां पर लिखते हैं एट द ईयर एंडेड, एट द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी क्वेश्चन में आपका ईयर होता है उसे आप लिख देते हैं। देन उसके बाद आप फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम सीखेंगे, और आई होप इस तरह से आपने कभी सीखा नहीं हुआ होगा, ठीक है, या किसी कोचिंग में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहला जो टर्म्स हम लोग ढूंढते हैं पूरी बुक्स में जो क्वेश्चंस होता है, उसमें सबसे पहला टर्म्स हम लोग ढूंढते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वेल एंड गुड, अगर मेंशन नहीं है ओपनिंग स्टॉक कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे उसको। जनरली ओपनिंग स्टॉक लिखा रहता है, कभी कभी सिर्फ स्टॉक लिखा रहता है। अगर सिर्फ स्टॉक लिखा है तो कॉमन सी बात है, ओपनिंग वर्ड का मतलब होता है 1 अप्रैल। ओपनिंग का क्या मतलब होता है? 1 अप्रैल। आपकी एक तारीख जरूर होगी, ठीक है, 01 एक तारीख जरूर होगी। महीना आपका अप्रैल में जनरली होता है। ईयर कोई भी हो सकता है, क्लियर? ईयर कोई भी हो सकता है। या तो ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा, अगर स्टॉक लिखा है देन आपको तारीख दी होगी, कंफर्म बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग सीखते हैं परचेज। परचेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना होता है। तो पहला काम, ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट होगा उसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। परचेज का अमाउंट हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परचेज का अमाउंट जब हम लोग लिखेंगे तो परचेज में कुछ टर्म्स होते हैं जो कि माइनस किए जाते हैं, और वो टर्म्स में बहुत तंग करते हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा पॉइंट आउट रखिएगा इसमें, ठीक है। कि अगर कुछ भी आपको मिस होता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस क्वेरी होती है आपके अंदर तो उसे आप कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपको उस बात को और डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है। तो परचेज में क्या क्या होता है? पहला तो जनरली सभी जानते होंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको छोड़ के, रिटर्न के नाम से होता है। इसको हम रिटर्न बोल सकते, रिटर्न परचेज या परचेज रिटर्न भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, मैंने अमाउंट को रिटर्न कर दिया तो हमारे पास जो बच गया वो आ गया। सुनिए मेरी बात, कहानी खत्म नहीं हुई है।
परचेज में रिटर्न परचेज माइनस होता है या परचेज रिटर्न माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ये तो सबको आता है, जनरली बच्चे सीख जाते हैं कि परचेज में परचेज रिटर्न माइनस करना है। समस्या क्या आती है कि जो परचेज रिटर्न होता है, ठीक है, इसके दो नाम हैं। परचेज रिटर्न को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लेस करेंगे इसमें क्या, रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न बोल सकते हो। पहली बात ये समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ यही है तो इस अमाउंट को यहां ना दिखा के यहां दिखा देंगे, लेकिन सपोज कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। आप कहेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या बता दिया आपने, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, एक ही जगह में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कि कहानी आगे तक है तो आगे बढ़ना है, और आगे कहानी नहीं है तो नहीं बढ़ना है। बात खत्म। कॉमर्स का एक बेसिक रूल है, अगर कोई स्टेप आ रहा है तो उसे फॉलो करेंगे, अगर वो स्टेप नहीं आ रहा है तो उसे नहीं फॉलो करेंगे। सिंपल समझिए, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए, और कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो कि परचेज में माइनस होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता होंगी, कुछ बच्चों को हो सकता है शायद ये बातें ना पता। तो परचेज में आप लेस करते हैं, और भी टर्म्स लेस करते हैं, जैसे कि सैंपल हो गया आपका। अब मैं इसको हम रेड मार्क्स में लिखेंगे, ठीक है, मैं इसे रेड मार्क्स में लिखूंगा या ब्लू से लिख दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे क्यों मैंने लिखा। सैंपल हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो गया। और ये लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अगर वो गुड्स है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है वो, गुड्स से रिलेट करता है, सामान से रिलेट कर रहा है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे, इस शेयर की माइनस करेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न बना, सर इन्हें माइनस किया जा रहा है, हम क्यों इन्हें माइनस करेंगे, तो इन्हें माइनस हम तब करेंगे जब ये जो वर्ड है सैंपल, डोनेशन, चैरिटी, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, या फिर एक और वर्ड लिख लीजिए, ठीक है, पर्सनल यूज, ट्राइंग इसे बोलते हो, ओके, पर्सनल ट्राइंग अगर है वर्ड, ड्राइंग आ गया, ठीक है, और ये गुड्स से रिलेटेड करता है, ठीक है, गुड्स अगर ड्राइंग हो रही है तो समझ जाएंगे कि ये जो टर्म्स हैं परचेज से माइनस होंगे, लेकिन कब, जब ये सारे टर्म्स, आई रिपीट माय वर्ड, जब सारे टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये तभी यहां माइनस होंगी जब आपकी ये जो टर्म्स हैं वो कहां लिखी हो, आउट ऑफ द बुक्स लिखी हो। आउट ऑफ द बुक्स कैसे होगा, आउट ऑफ द बुक्स का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दिया हो, या एडजस्टमेंट में दिया हो, या प्रोविजन में दिया हो। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है उनमें से अगर ये हैं, सैंपल है, डोनेशन है, चैरिटी है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, ड्राइंग है, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए आप कोई भी आइटम्स आप वो करते हो, तो
उन्हें हम फिर परचेज में माइनस करेंगे अगर आउट ऑफ द बुक्स है, मतलब क्वेश्चन के बाहर अगर गिवन इंफॉर्मेशन है इन नेम में से तो परचेज में माइनस होगा, श्योर है। इसीलिए मैंने इसे ब्लू मार्कर से लिख दिया ताकि याद रहे इस चीज को, ऐसे नहीं माइनस होगा। इन जनरल सेंस में ये सभी लॉस है, इन्हें हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इन जो रेड मार्क के अंदर जितनी चीजें लिखी हैं, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला सैंपल हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे ही आएंगे। ड्राइंग का क्या होगा सर, क्या ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? नहीं, ड्राइंग परचेज में माइनस होगा और यही ड्राइंग हम जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो इधर कैपिटल में माइनस करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? लेकिन अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ, गलतियाँ बच्चे इसी से करते हैं। इन्हें ये तो पता है कि परचेज में परचेज रिटर्न माइनस होता है, या परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से जानते हैं, ये पता है। गलतियाँ यहाँ करते हैं, सैंपल नहीं पता कि सैंपल भी माइनस होता है, डोनेशन भी माइनस होता है, चैरिटी भी माइनस होता है। लेकिन कब होता है? जब वो आउट ऑफ द बुक्स हो या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में की गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या क्या आइटम्स होते हैं या कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं। चलिए, तो फिर ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, फिर मैंने याद करो ओवरव्यू दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से टर्म, एक तो कुछ डायरेक्ट के नाम से आ जाता है, कभी कभी डायरेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैंने आपको फिर से बता दिया कि ये जो लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स और रिटर्न परचेज के अलावा ये टर्म्स भी लेस होते हैं परचेज में, ठीक है, इन्हें भी माइनस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से आ जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में और कौन कौन से होते हैं वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस? तो वेजेस हो गया आपका, कैरियर्स, इनवर्ड हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज है, सर यहाँ तो इनवर्ड्स है, यहाँ आउटवर्ड्स है। तो कैरियर्स इनवर्ड्स इस साइड प्लस हो रहा है और आउटवर्ड्स माइनस हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को समझो। इनवर्ड्स प्लस हो रहा है, ये लेस थोड़ा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट अमाउंट में आएगा। बट जो रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से जो होते हैं वो लेस होते हैं, इस बात को नोटिस रखना, ठीक है, नोटिस करना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, कैरियर्स इनवर्ड्स, रॉयल्टी, और उसके बाद ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई, ओके। और भी बहुत सारे, एक वर्ड आता है फैक्ट्री एक्सपेंस के नाम से। किस नाम से आता है? फैक्ट्री एक्सपेंस के नाम से। मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, फैक्ट्री एक्सपेंस के नाम से। और क्या क्या आता है? और भी बहुत सारे टर्म्स आने चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या क्या आता है? ऑक्ट्राई आता है, ये तो आपने पढ़ा, रॉयल्टी, ऑक्ट्राई, एक ही इसको हम टैक्स है तो उसको एक ही में लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑयल आ जाता है, फ्यूल आ जाता है, गैस एंड पावर आ जाता है। ये सारे जो टर्म्स मैंने आपको लिखवाए हैं सभी रिलेट करते हैं ट्रेडिंग के पार्ट से। और सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो रॉयल्टी, ऑक्ट्राई में, कैरियर्स इनवर्ड्स में, ठीक है। अगर फैक्ट्री वर्ड आ गया समझ जाओ कि वो ट्रेडिंग से रिलेट कर रहा है, कुछ नहीं सोचना। अगर फैक्ट्री वर्ड है इट मींस इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट।
अगर डायरेक्ट वर्ड है, डायरेक्ट के नाम से, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट बिल, डायरेक्ट दिस, तो डायरेक्ट के नाम से कोई भी आइटम से टर्म्स आ जाए वो ट्रेडिंग से रिलेट करेगा। उसी प्रकार से इनडायरेक्ट के नाम से आ जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का बात हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आई विल ट्राई ओके टू टीच यू इन अ वेल मैनर। ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन हो गया, परचेज हो गया, और ये टर्म्स आपके जो कि रिलेट करते हैं डेबिट साइड। अब बात आती है सर, कृपया बताएं क्रेडिट में क्या क्या होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यहीं से कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है, यहीं से कहानी खत्म नहीं होती है। इसके बाद लास्ट में आप मुझे 30 सेकंड दीजिएगा प्लीज। ओके, लास्ट में आप देखेंगे तो मैंने ऑयल, फ्यूल, गैस एंड पावर लिखा। कुछ लोग के अंदर दिमाग में आ रहा होगा सर ऑयल, फ्यूल, गैस एंड पावर क्यों? जैसी बात है, फैक्ट्री में यूज होती है सामान, ऑयल, फ्यूल, गैस एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। तो कभी कभी फैक्ट्री की जगह पर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आ जाता है, तो चाहे फैक्ट्री एक्सपेंस है या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है या फैक्ट्री एक्सपेंस है, ये दोनों ही एक ही होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस, कैरेज इनवर्स, रॉयल्टी, ऑपराइट, ऑयल, फ्यूल, गैस एंड पावर। अब बात आती है सर प्लीज बता दीजिए क्रेडिट साइड में क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो क्रेडिट में बस 2 या 3 टर्म्स याद करने हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होता है सेल्स, सबसे पहला काम सेल्स। कॉमन सी बात है, जब हमने यहाँ परचेज लिखा था तो रिटर्न किया था, तो सेल्स रिटर्न भी होता होगा, बिल्कुल। यहाँ पर लेस करते हैं हम सेल्स रिटर्न को, सेल्स रिटर्न। इसको और किस नाम से जानते हैं सर? इसको नाम से जानते हैं रिटर्न इनवर्स के नाम से। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, इसे हम रिटर्न इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्स। अब आप ध्यान से समझिएगा, तो हमने सेल्स के अमाउंट में सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया और जो आया उसे हमने बाहर दिखा दिया। क्लियर? इसमें क्या क्या और टर्म्स माइनस होते थे इसमें, जैसे परचेज में बहुत सारे टर्म्स थे, सैंपल, डोनेशन, चैरिटी, लॉस, ऐसा इसमें नहीं, समझिए। और क्या हो सकता है सर? सर यहाँ इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे वहां ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्या क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आएगा? नहीं, कभी कभी केवल स्टॉक आ जाता है। तो केवल स्टॉक आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो सीधा 31st डेट देगा, ठीक है, और मार्च देगा, और ईयर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने बताई। ओपनिंग स्टॉक का मतलब 31st मार्च होता है, ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक का मतलब 1 अप्रैल होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब 31st मार्च होता है। क्लियर? कोई दिक्कत समझते हैं? ईयर कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा ईयर दिया गया है। अब आपके पास प्रश्न ये है, सर ठीक है मैंने इसे रट लिया, मैंने इसे समझ लिया कि हाँ ये टर्म्स आते हैं, क्योंकि समझना तो बहुत जरूरी है। जब 1-2 बार हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो ये टर्म्स याद भी हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस लगाने हैं, टर्म्स हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो अब बात आती है सर ठीक है ये हमें टर्म्स याद हो गए हैं, ये भी टर्म्स याद हो गया, हमने लिख लिया, इसके बाद क्या करें? इसके बाद आपको इनका टोटल करना है, इनका टोटल करना है और देखना है कि किसका टोटल ज्यादा आता है। ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है
ठीक है, नोट्स में ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर डेबिट डेबिट ग्रेटर देन है क्रेडिट से। अब सर डी आर सी आर क्यों लिख रहे हैं सर, ये क्या चीज है? तो डी आर का मतलब होता है, मैं फिर से लिख दे दूंगा, ठीक है, डी आर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। अगर किसी ने अभी तक नहीं बताया तो समझो, ठीक है। सी आर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है। तो डी आर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड, डी आर स्टैंड्स डेबिट रिकॉर्ड, सी आर स्टैंड्स क्रेडिट रिकॉर्ड। ये बात समझिए, ठीक है। अब यहां बात आते हैं कि डी आर यानी कि डेबिट रिकॉर्ड अगर क्रेडिट रिकॉर्ड से ज्यादा है, मतलब ये कि जो डेबिट का जो सम हो रहा है टोटल वो क्रेडिट से ज्यादा है। अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट लेस है, कम है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। वहीं अगर डेबिट जो है कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस आता है, और अगर डेबिट कम है तो क्या आता है? क्रॉस प्रॉफिट आता है। बस अगर लॉस आता है तो कहां दर्शाएंगे? अगर लॉस आता है तो हम लिखाएंगे यहां पर ग्रॉस लॉस, अमाउंट चढ़ा देंगे जो भी आया बैलेंसिंग फिगर वाला, ठीक है। टोटल यहां पर लिख देंगे, यहां पर टोटल यहां पर लिख देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए क्रेडिट ज्यादा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा सकता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहां दिखाएंगे। तो प्लीज टेक a screenshot and then I will proceed. ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर अकाउंट्स को समझना है ना, पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। और मुझे एक छोटी सी बात जब मैं पढ़ता था मुझे याद आ रही है, वो ये कि हमारे टीचर्स थे, वो बोलते रहते थे कि आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे अकाउंट्स आपका बेहतर होता जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सपोज आपके बुक्स में 20 से 30 क्वेश्चन, और 20 से 30 क्वेश्चन तो आप लगा नहीं सकते हैं। सभी को पता है कि हम और आप 20 से 30 क्वेश्चन पर डे नहीं हो सकते। फिर जब हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर होशियारी काम आती है। होशियारी कैसे काम आती है? आपके टीचर्स अक्सर बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते नहीं बोलते हैं? अगर ये क्वेश्चन ये रिपीट करते हैं, कई बार बोलते हैं, इसका मतलब वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, वो उन बच्चों के लिए बोलते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये कि अगर 20 से 30 क्वेश्चन है तो उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और पूरी बुक्स यानी पूरे चैप्टर्स का, पूरे टॉपिक का निचोड़ होते हैं। इसीलिए उनको बोला जाता है कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे पैटर्न आ जाते हैं। क्लियर?
और इसी लाइन को कॉमर्स को समझने के लिए एक हमारे अमेरिकन पोएट लेक्चरर कह लीजिए, पोएट कह लीजिए, एसेइस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, राल्फ वाल्डो इमर्सन, अमेरिकन पोएट है। और इन्होंने एक बहुत ही सिंपल से वर्डों में समझाया है। क्या समझाया है? कि कॉमर्स इज अ गेम ऑफ स्किल। कॉमर्स इज अ गेम ऑफ स्किल विच एवरीवन कैन नॉट प्ले। Commerce is a game of skill which everyone cannot play and some वाला few can play well। मतलब समझिए कितनी बड़ी बात कह रहे हो। कॉमर्स एक ऐसा गेम है जो स्किल का गेम है, सभी उसे नहीं खेल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे से खेलते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दिमाग आपको उतना ही लगाना है जितना आपको जरूरत है। फर्जी मेहनत अकाउंट्स में नहीं की जाती है। नंबर ऑफ 20-30 क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन प्रैक्टिस में सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि सर ने बताया, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार लगाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, समय बचाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके। तो ये जो हमने फॉर्मेट बताया है कि फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें कुछ इतने ही कुछ टर्म्स हैं और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टर्म्स आपको दिखाई नहीं देंगे क्लास 11 में। जब आप क्लास 12 में पहुंचोगे थोड़ा बहुत कुछ नया मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा पानी वाली पी लो। ओके, ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, गिवन है, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक बॉक्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन और एक बॉक्स के बाहर है। तो बॉक्स को समझना है सबसे पहले तो क्वेश्चंस को समझना, किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो ये जरूर चेक करिएगा जो अमाउंट्स दिया गया है क्या उनका टोटल गिवन है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो अमाउंट्स दिए गए हैं उनका टोटल गिवन नहीं है, क्वेश्चन में टोटल नहीं गिवन है। अगर टोटल गिवन नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है। तो जब आप देखेंगे फॉर्मेट को तो ऊपर साइड जहां टाइटल लिखा है तो देखो वहां पर डेबिट लिखा है और यहाँ पर क्रेडिट लिखा है। यानी कि इस क्वेश्चन में इन्होंने सम करके नहीं दिया, टोटल करके नहीं दिया, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन में इन्होंने ये बता दिया जो ये वाला साइड है, लेफ्ट साइड ये डेबिट है और जो राइट साइड है वो क्रेडिट है। ये कंफर्म कर दिया। अब सर ये बताइए सर डेबिट क्रेडिट ना होता तब क्या करते? फिर तो आपको टर्म्स याद ही होने चाहिए। पहली बात तो टर्म्स याद है तो अच्छी बात, मतलब अगर डेबिट क्रेडिट नहीं दिया है तो टर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए फिर तो। ठीक है, अच्छे का मतलब है कि अभी थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक, कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, नहीं डेबिट वाला है डेबिट नहीं जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा, तो कंफर्म होता है। लेकिन अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है तो यही परचेज जो डेबिट साइड लिखा है ना वो यहाँ लिख सकता है वो, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर इसको तो हमें वहां लिखना है। हाँ, टर्म्स याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर टर्म्स नहीं याद है तो ही प्रॉब्लम। टर्म्स याद कर लीजिए, जितने भी टर्म्स लिखवाए हमने, ठीक है, जितने भी पद हमने लिखवाए हैं, टर्म्स को हिंदी में पद बोलते हैं। पद का मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो कि अकाउंटिंग में उन्हें टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं और क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, है ना। सॉल्यूशन
01 आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ईयर नहीं दिया गया है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ईयर का कॉलम में डैश करके छोड़ देंगे। ओके, बहुत ही सिंपल से तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि दो टर्म्स में हम लोग डिवाइड करते हैं फॉर्मेट में, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। एक डेबिट टर्म्स होता है, दूसरा क्रेडिट टर्म्स होता है। ओके, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, और पेशेंस रखेंगे, जब 2-3 क्लासेस होंगी और बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अभी से आप ये मान बैठेंगे कि सब ये तो बहुत सारे टर्म्स हैं, कैसे याद होंगे। तो जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा ही फील होता था, उसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कंटिन्यूस क्लास लेते रहेंगे, 1-2-3 क्वेश्चन तक आप देखेंगे इन चीज़ों को, देन आपको रियलाइज होगा कि ये तो इजी था, कर सकते हैं। तो पार्टिकुलर में आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया गया है 80,000 के। फिर परचेज ढूंढेंगे, परचेज आप देखेंगे तो इस कॉलम में ये लास्ट में परचेज लिखा हुआ है, $70,000। उसमें आप देखेंगे तो परचेज का रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से, मैंने याद करो लिखवाया था। या तो परचेज रिटर्न लिखा रहेगा, या रिटर्न परचेज लिखा रहेगा, या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। 10,000 रुपीज आपका रिटर्न करना है, यानी कि 10,000 रुपीज को आप माइनस करेंगे। 70,000 में 10,000 माइनस हो जाएगा तो 60,000 आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, वेजेस आपका 10,000 है। कैरेज इनवर्स ₹2,000। आप कैरेज इनवर्स तो ट्रेडिंग का पार्ट हो गया इनवर्स, लेकिन अगर आउटवर्ड्स की बात करें तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का पार्ट है, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है इनवर्ड्स, और ये आउटवर्ड्स में अगर आता है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। अभी फिलहाल प्रॉफिट लॉस तो पढ़ नहीं गए, आगे बढ़ते हैं। गैस एंड फ्यूल, गैस एंड फ्यूल आपका 4,000 रुपीज है। जो टर्म्स ट्रेडिंग से रिलेट करेंगे वही लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। जिससे कैरेज आउटवर्ड्स प्रॉफिट लॉस का पार्ट था तो हमने छोड़ दिया। आफ्टर आई इसी का पार्ट है, 500 रुपीज है। फैक्ट्री लाइट 4,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000। एक चीज मैंने नहीं लिखवाई थी, डॉक एंड चार्जेस, ठीक है। डॉक्स एंड चार्जेस भी आपका ट्रेडिंग का पार्ट होता है, याद रखिएगा। ये सारे टर्म्स डेबिट के हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्रेडिट में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में सेल्स है, सेल्स आपका 1,20,000। क्या सेल्स रिटर्न हमने दिया है? रिटर्न इनवर्स के नाम से होगा, देखो
अच्छा, जितना भी रिटर्न होता है वो अपोजिट साइड होते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न इधर मिलेगा और परचेज का रिटर्न उधर साइड मिलता है। तो एक ये भी जब डेबिट क्रेडिट दिया रहता है, डेबिट क्रेडिट दिया रहे या फिर सम टोटल दिया रहे, ठीक है, तो एक फायदा ये भी है कि रिटर्न बहुत आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि सेल्स का रिटर्न इधर साइड होगा, परचेज का रिटर्न उधर साइड होगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में है? तो सेल्स रिटर्न आप माइनस करेंगे, देखिए से रिटर्न इनवर्स के नाम से जो भी है, रिटर्न इनवर्स कितना है, 4000 रुपीज है। ओके, 4000 को माइनस करेंगे, 1,20,000 4000 माइनस होगा तो 1,16,000 आ जाएगा। अब लास्ट में आप देखेंगे तो क्लोज, ये सारे टर्म्स हो गए, सिर्फ एक टर्म्स ऐसा था ये वाला जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट कर रहा था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास क्या है कि सिर्फ कैरेज और पर्स है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा जनरली क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में गिवन रहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, और जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में गिवन रहता है ये दो जगह जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, ठीक है। अब सारे हमने पॉइंट्स लिख लिए, टर्म्स लिख लिए हैं। अब ये देखेंगे जो डेबिट है क्रेडिट है, क्योंकि डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, ठीक है, तो डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, क्लियर। तो मैच करेंगे, टोटल करेंगे, और देखेंगे कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका टोटल किया, क्रेडिट का कितना आ रहा है भाई, देखिए क्रेडिट कितना आ रहा है। क्रेडिट आप चाहो तो वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। वर्किंग नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट्स लिखने के बाद आप डेबिट सम या डेबिट टोटल भी ले सकते हैं। डेबिट टोटल आप देखेंगे तो 0 0 2 0 तो कंफर्म है। तीसरा जीरो देखें, तीसरा जीरो में 5 आ रहा है, 5 डिजिट आ रही है। थर्ड डिजिट देखेंगे हो गया, चौथे डिजिट देखेंगे 2 4 6 2 4 6 4 10 10 to 12 12 to 14, इसे चेक कर लें। 2 4 6 4 10 10 to 12 12 to 14, 1 के फॉरवर्ड टू लेफ्ट साइड, 8 1 9 9 6 15 15 and 1 16, 8 1 9 9 6 15 15 1 16, ओके। तो ये आपका आ गया डेबिट टोटल, ठीक है। क्रेडिट टोटल कितना है भाई, ये चेक करो। 0 0 3 0 तो ऐसे ही हो गए, 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 1। अब आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने 1,16,000 और 40,000 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1,56,000, ठीक है। और एक बात बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो गई, वो ये कंफर्म हो गई कि डेबिट जो है वो ज्यादा है। यहां से क्या है, डेबिट मोर देन है क्रेडिट, बिकॉज ये डेबिट का सम, डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो जब भी डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो लॉस होता है, कंफर्म बात है। तो यहाँ पर लॉस आएगा, कितना लॉस आएगा, चलिए माइनस करके देखते हैं, जो बैलेंस शीट फिगर है तो जो सबसे ज्यादा आ रहा है उसको तो दोनों तरफ लिख देते हैं। तो डेबिट ज्यादा आ रहा है 1,64,500 को हम दोनों तरफ लिख देंगे,
जो ज्यादा आता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक है। और जो ज्यादा आता है उसमें कम वाले को घटा देंगे, यानी कि डेबिट में क्रेडिट को माइनस करेंगे। और चूंकि डेबिट ज्यादा होने पर क्या लिखा जाता है, लॉस लिखा जाता है। कितना लॉस आएगा देखिए, माइनस करके पता चल जाएगा। 5 14 में 6 को लेस करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 5 लेस होगा तो 0 आएगा, यहाँ पे 0। 8500, ठीक है, 8500 या 8500, तो हमारे पास जो ग्रॉस लॉस आया है, ठीक है, इसी को हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, वो कितना है, 8500 है। 8500 अगर हम ऐड करते हैं तो ये 1,62,500 है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करता है। बहुत ही सिंपल से शब्दों में क्वेश्चन को करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन को देखना है, कौन कौन से टर्म्स ट्रेडिंग से रिलेट कर रहे हैं उनको आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको जो ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करते उन्हें हमें छोड़ देना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर भी लिखा होता तो भी आता। क्लियर बात, तो समझ के करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में प्रोविजंस होते हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। कब ऐसा होता है कि हमें ट्रेडिंग में दिखाना है या क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस कर लेंगे, बेहिचक होके करिएगा। एक क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए, ठीक है, आप उसे करिएगा। और इसके लिए मैं छोटा सा पीडीएफ बना के आपके चैनल, मतलब अपने चैनल पर मैं लिंक कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आपसे उन्हें करिएगा। अगर कोई डाउट होते हैं तो बिल्कुल यू कैन कमेंट, ओके, आप कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 21 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और जैसा कि जो क्लास में समझ पा रहा हूँ, आई होप आप लोगों की क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि और भी बेहतर तरीके से क्लासेस ले पाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया हूँ, ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and take care of yourself and take care of your family. Enjoy it.